Poor Dad. Anybody read that book? Did it change your life? Rich Dad Poor Dad talks to you about how you should save money, invest money, build assets. It's all very sort of boring stuff, not very exciting. But I applied it. Because of that, उसकी वजह से मैं जल्दी अपनी नौकरी छोड़ के राइटर बन पाया. So it did change my life. Many books. So the author of that book, I hope you know, is in great debt and all of that stuff. उसने कुछ ज़्यादा ही उधार ले लिए हैं. But that time it did. I'm not even saying कि author के साथ क्या हुआ, whether he चाहे उसने ढकोसला भी किया था. It changed my life. मेरे को फर्क पड़ा. It changed my life. There was a book called अभी recently I read a couple of years back COVID में called Deep Work. It talks about the deep work rather than doing. मैं सब कुछ कर रहा था. टीवी के शो भी कर रहा था, फिल्में भी कर रहा था, बुक्स भी कर रहा था. और ओके ब्रांड बन रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं. बट उसने मतलब उस बुक से मैं कन्विंस हुआ कि जितना सेटिस्फैक्शन कोई एक काम पकड़ लो लाइफ, बट डू इट इन अ वेरी डीप वे, कटिंग आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा अगर आप 10 चीज़ों में ओके कर रहे हो. सो आई जस्ट चेंज माई लाइफ एंड आई वेंट बैक टू राइटिंग, कट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दैट बुक हैज चेंज माई लाइफ. So many books. Alchemist will change your life. Okay. I'm not saying कि एकदम ही पूरा ही मतलब घर वालों को बोला ओके बाय, मतलब थोड़ा बहुत बदल गया. उसके बाद से आप सोचते हो अलग वे में, you know कि यार ठीक है. So it can be. जी, क्योंकि अब 10 ही मिनट बाकी हैं and a lot of, I'm sure there are a lot of questions. So ma'am, we can start with you. Hi, Chetan, thanks for such an entertaining session. Really, honestly, it was absolutely raw and candid. So my question to you is, do you like to reread your books? And do you, if yes, is it like a cringe factor कि आपको बहुत मजा आता है कि oh my god, did I really write that? Honestly मेरे को, मैं जब एक बुक मेरी आती है, मैं कम से कम एक तो मैंने लिखी है और कम से कम उसे 10 बार मैं पढ़ चुका हूँ. बिकॉज अभी भी जैसे जो अक्टूबर में जो बुक आ रही है, मैं अब तक 6 बार उसको रिवाइज कर चुका हूँ. अब पब्लिशर थोड़े और चेंज है, हर बार मुझे बार पढ़नी पड़ती है. जितनी भी अच्छी स्टोरी आपको, अगर आप 10 बार पढ़ लोगे और वो आपने ही लिखी है, उसका इफेक्ट होना कम हो जाता है. तो आई डोंट लाइक टू रीड. कभी कोई किताब पढ़ी थी, एक आध पन्ना देखता हूँ तो ऐसा लगता है नहीं और बेटर लिख सकता था. वो भी एक एंग्जाइटी आ जाती है. स्पेशली मैं अपनी पुरानी बुक्स देखता हूँ, मुझे लगता है आज मेरी राइटिंग और भी बेटर है उससे. होगी भी 20 साल से लिख रहा हूँ, तो आई ट्राई नॉट टू. You don't like to go back to read maybe your first book that you wrote. It's like आपने कभी अपनी आवाज रिकॉर्ड करी हो, कभी आपने सुनी अपनी आवाज? Oh God, no, that's cringe. Something like that. Yeah, I would like, Chetan, I teach your books rather. Yeah, I teach your books to women. I always start with 5 point someone because they're women whose kids are fluent in English but they're still not. So I try to do that. And whenever I do that, they come back and ask me, ma'am, ये इनकी निजी जिंदगी की बुक्स थी? मैंने कहा काफ़ी तो थी. So any book that you feel कि आपकी अभी भी रह गई है, कोई एक चाह जो आपने अभी तक पूरी नहीं करी है, वो किताब आप अभी लिखना चाहेंगे या लिखने की सोच रहे हैं? और अगर हाँ, वो कौन से विषय के ऊपर हुई? बहुत है ना, अभी भी बहुत कुछ है. I mean, there's a lot of books I've not written and I would love to do on. I think just more mature stories on being a parent, for example, like father son kind of. I've not done. I mean, I don't know what to write on that yet, but एक दिन आएगा शायद. So there are many aspects getting older. Because we all get older, but I think as a writer, I have a way of looking at things. I can explain things in a simple way. कि मैं काफ़ी observe करता हूँ, like क्या फ़र्क है as I'm getting older, क्या फ़र्क है. Most लोग नहीं करते, लोग अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं. So I think there's hopefully lot of stories yet left to be written. Understanding relationships is a very complicated thing. Marriages, boyfriend, girlfriend. Still, there's a lot of changes happening in the society today. And this because there's not enough. Yeah. So the next book, for example, takes some controversial topics, but they are existing in society. What can I do if they are there? Even if it's controversial, it's there. So yeah.
Do you have a mentor in your life when you were sort of Speaker. maybe going to your college, after college? Did you have a mentor in your life? I've had. An Indian I've had, mentor? but not that one person. जैसे मेरे अभी भी लाइफ में कुछ लोग हैं look up to, like किसी को फाइनेंशियल एडवाइस के लिए I feel like इनको पता है, करियर एडवाइस के लिए I'll ask, like from a writing I have certain people, some editors who I talk to कि हाँ भाई ये बताओ क्या, who I trust. So there is not one person, but for different, like for fitness I'll have a different kind of people. But for your life, sort of how to live your life when you just graduated अपनी from लाइफ के college? लिए no, I'm not happy. Not. But for individual areas I do, and nowadays आजकल online mentors भी मिल जाते हैं. They वो may तो not है। even know कि वो वो मेरे तो है, mentor हाँ जी, हाँ हैं. जी। But if I'm seeing, like for example, I'm 51, if I'm doing weight training, I'm going to the gym. I want to do it in a sensible way. तो I look for six pack over 50. वीडियो में बोलता हूँ. देखें कौन खा रहा है. तो वही तो वो मेरा mentor है. एक तरह That's आया नहीं अभी तक वैसे. absolutely. यार यंगस्टर पूछो मतलब हाय सर, हाय सर, नमस्ते। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप इतने अच्छे ज्ञानवर्धक सेशन के लिए। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बात की कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आजकल मैं खुद यंगस्टर्स हूँ, और आपने बहुत सच्ची बात की कि हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं बुक ना पढ़ने की बजाय उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये पिछले तो बनी होती है कोई ये कैंसर हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और मत पियो, फिर भी लोग पीते हैं। पर एक वार्निंग तो है, फोन पे तो नहीं होती। या तो उस पे नालायक बच्चों की फोटो लगा दो कि भाई ये देखो ये फेल हो गया था, ये देखो इसका रिपोर्ट कार्ड। ऐसे होना चाहिए ना नालायक। फोन देखने से आप नालायक हो सकते हैं, ध्यान रखें, पर ऐसा भी नहीं, इलीगल है। अपनी जिंदगी बर्बाद करने इज कंप्लीटली लीगल। सरकार आपको नहीं रोकेगी। सरकार नहीं आके बोलेगी बेटे क्या कर रहे हो, जो मर्जी कर, इट्स टोटली लीगल। अपने आप को खत्म कर दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कर तो किसको फर्क पड़ेगा? आपको पड़ेगा, आप ही कर सकते। हम सबके घर में चीनी पड़ी होती है, हो सकता है किसी घर में 4 किलो चीनी पड़ी हुई है। अब ये तो नहीं है ना कि आप बैठ के खाए जा रहे हो, पर चीनी पड़ी है, चलो खाते रहते हैं। Why? You are automatically self-regulating. कि भाई है चीनी, इसका तो ये तो नहीं कि खाते रह गए, चलते फिरते एक चम्मच मुंह में डाल लिया। सेम विद फोन, यू हैव नॉन-स्टॉप डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल इन योर पॉकेट नाउ। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, मतलब माँ बाप थोड़ा बहुत बोल लेंगे इधर उधर, बट जनरली स्पीकिंग नोबडी विल टेल यू दैट दिस इज बैड फॉर यू एंड यू शुड लिमिट द डिस्ट्रैक्शन। देयर आर सम गुड यूजेस ऑफ द फोन आल्सो, आई एम नॉट सेइंग दोस, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मोस्टली पीपल वेस्ट टाइम काम के अंदर, ठीक है, ऑफ कोर्स फोन इज इमेंसली यूजफुल, लेकिन आप ही को कहना है कि मेरे को ही रेगुलेट करना है। आपकी जनरेशन की लग चुकी है एक्चुअली, क्योंकि हमारे टाइम पे सब था नहीं, सही में आपको पता ही नहीं है। और हम भी आपकी जगह होते हैं, हम भी भटक जाते हैं, यू नो, और हम अभी भी भटक रहे हैं, लेकिन हम भटक सकते हैं क्योंकि you know we made our careers. But for you, if you miss these few years, ऐसा झटका लगेगा ना लाइफ में, जिंदगी भर उसका द बिल आता है, हर चीज का बिल आता है लाइफ में। मैंने आपको कहा तो उसका बिल इतना भयंकर आएगा कि ये फिर लगेगा मैं रील्स क्यों देख रहा था, मैं क्रिकेट क्यों तक क्रिकेट देखते रहते लोग, IPL देखे जा रहे हैं, उनको तो करोड़ों रुपए मिलते हैं ना, प्लेयर्स को तो पर मैच। आपको कितने मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा आपको। आपको प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है, आपको ऐड दिखा के भाई आप खरीद लो उनके थोड़े चिप्स नूडल्स ये वो। सो यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि ये सब चल रहा है, मेरे को खुद ही संभालना है। द गुड न्यूज़ फॉर योर जनरेशन इज 90% ऑफ द योर पीपल विल नॉट कम आउट ऑफ इट। तो कंपटीशन एक्चुअली बहुत कम है। आपको लगता है कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन है ही नहीं, बस आपको इन चीज़ों से हटना है। ऑल दिस नॉनसेंस यू हैव टू पुट साइड एंड से अगले 5 साल आई विल फोकस ऑन माय लाइफ। If you focus, you will win 100% because सारे तो उलझे बैठे हैं फोन में, तो you just have to do that. But it is self-regulation and knowing कि मैं अपने आप को बर्बाद करना चाहूँगा तो कोई नहीं आएगा मुझे बचाने। कर लो बर्बाद अपने आप को, कर लो, करना है, but not worth it. Instagram is not so much fun also, you know, कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली जाए। Hi sir. I'm Pradeep Garoda.
जब आपने लिखना शुरू करा था 20 साल पहले, तो उसमें काफ़ी ओरिजिनलिटी की, काफ़ी नए आइडियाज़ थे, लेकिन विद द कमिंग ऑफ ChatGPT और Copilot लाइक दिस, तो आपको व्हाट चैलेंज यू फील दिस विल पोज? यू नो, छोटे मोटे काम चैट जीपीटी कर देता है. मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, तो कवर लेटर मैंने उससे लिखवा लिया. प्योर झूठ उसने लिखा, हमें यहाँ जाके ये देखना है, वो देखना है, वो देखना है. मैंने अपने आप ही बनाई जा रहा है. हो गया, वीज़ा भी मिल गया. मैं कंट्री नहीं बता रहा, फिर आगे कल प्रॉब्लम हो जाएगी. बट फिक्शन जो मैं लिखता हूँ, जैसे लव स्टोरीज और एनी स्टोरी विच हैज इमोशन, यू नो, मेकिंग पीपल लाफ, मेकिंग पीपल क्राई, इसमें चैट जीपीटी अभी तक तो बहुत फेल है. इट कैन नॉट डू इट. वो कर नहीं सकता. आपने कोशिश करी है प्रॉम्प्ट देके? क्यों ना करूं? क्योंकि मैं अगर उसे कह दूं, नहीं, कोशिश से मतलब क्या? व्हेन यू आर सेइंग, मैंने कहा यू आर चेतन भगत, राइट माय नेक्स्ट बुक, मेरा तो काम आसान हो जाए ना. सोचा जाके हर महीने बुक निकल रही है, बुक लॉन्च करके आ जाओ. खुद भी नहीं पढ़ी है. बट इट वाज सो बैड. Any attempt at writing fiction is very bad. It can do a spelling check, grammar check very nicely, but already was there. It does it even more efficiently now. Copilot, things like that. But it cannot do active, because ChatGPT ने suffering ही नहीं देखी लाइफ में. हाँ, उसका बचपन में it didn't have a tough childhood. I did. ChatGPT का दिल नहीं टूटा, मेरा टूटा है. तो वो आएगा ना राइटिंग में. So that is not missing in the way ChatGPT is basically रट्टा मार पूरी दुनिया के इंटरनेट का, उसके हिसाब से बता. रट्टा मारने में और फील करने में फर्क है. लेकिन बहुत से, चेतन, just to give you another perspective from my I mean mine, as in people who work on AI and others, I don't work on AI, but I'm just speaking as an outsider. I know people who do. AI ने जो आपके रट्टा मारा है, वो बहुत सारे लोगों का जो दिल टूटा है, उसमें एक पैटर्न होंगे कि इनका इस मतलब पैटर्न्स वो देखता है ना. तो बहुत सारे लोगों ने, आप जैसे बहुत सारे ऑथर्स हैं, उनके काम से वो उसने सीखा है कि दिल टूटने का मतलब क्या है, और ऐसे है ना, तो वो उसको रिप्रोड्यूस करता है. तो ये कहना कि वो ये बिल्कुल नहीं समझता है, मेरे ख्याल से ये ज्यादती है. समझता है, लेकिन वो, क्योंकि आप कह रहे हो कि इट इज अ कलेक्टिव एवरेज ऑफ थिंग्स, इट रीड्स इन अ मीडियोकर वे. इट विल नॉट, यू विल नॉट फील. जैसे मैंने आज जो चीजें बोली, यू फेल्ट कि एक इंसान ने बात करी. आई कुड हैव, ChatGPT could have answered every question that you asked me, but it would not have given these kind of इधर उधर के आंसर. बाबा बनना है नहीं बोल सकता था ना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग बाबा बन रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, मुझे लगा मैं भी बन सकता हूँ. ChatGPT will like kind of say कि एक ऑथर चेतन भगत कैसे आंसर देता है ऐसे. So that people can tell so far. Maybe one day, I agree with you, it's getting better and better. Maybe एकदम original कर देगा. But at the end of the day, it is not original. It is derivative. When it's derivative, it's different. आप कई बार जाते हो, इंडिया गेट जाओ, गेटवे ऑफ इंडिया जाओ, कोई आप या कोई अब्रॉड भी, इफ यू गो टू आईफिल टावर, लोग बैठ के आपकी पेंटिंग बनाते हैं. They'll charge you 20 euros. They'll make you painting. और उसके आप 20 euro देते हैं. But there are some artists जिनके painting crores के बिकते हैं. Why? Why is that guy not getting more? Because जो करोड़ों वाला artist है, they have a certain expression which is unique. They have been able to see the world in a way जो लोग सब लोग नहीं देख रहे थे वैसे. Whereas the guy who's drawing a painting or even just selling sceneries on the road, he is not able to create that. Of course, there are a lot of other factors. Yes. But I'm afraid so. Yeah. But invariably, when you have derivative work, people do not get so moved by it. People do not get so emotionally attached to it. They will see it, हाँ अच्छा है, but they will not go back thinking. So many movies come. You can tell कौन सी formulaic movie है, and which movie had a heart, you know. And those movies get remembered for years. Books get remembered for years. So far, AI has not been able to do it. But it can do a lot of things. But I think there is also a lot of human elitism. Wow, okay, नया word है कि मशीन का मतलब जी बिल्कुल, हमें लगता है कि हम ही कुछ 30 बार खान है. मतलब आपके लिए नहीं कह रही मैं, हम अपने लिए नहीं कह रहा, इंसानों की बात कर रही हूँ. और हम हमेशा मशीन को जो है एक तरह से
artificial intelligence, I think, has really opened up. See, पूरा इंटरनेट बना है लोगों की इंफॉर्मेशन. लेट्स टॉक अबाउट इट इन आई थिंक. हाँ, टाइम भी खत्म हो गया है. बट इट बेसिकली लॉजिक से बना है. इंटरनेट लॉजिक, लोगों के रैशनल एक्सप्रेशन से बना है. Whereas feelings operate at a very different way, and there is not that much on the internet database which is about human feelings. We still don't understand our feelings, how it all works, how our subconscious works, why some things make us cry, we still don't fully understand that. So the internet doesn't have that information yet. It's possible. I'm not ruling it out, but today we are not there. But it is getting better. जी. बिल्कुल अनंत जी. थोड़ा व्यक्तिगत, हाँ बिल्कुल अनंत जी. थोड़ा व्यक्तिगत ये है कि आपने कहा आपने दिल भी टूटा. हाँ, किसका नहीं टूटा यहाँ? दिल एक ही बार टूटा है सर या कई बार टूटा? वैसे तो सर दिल एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं, पर है कई बार टूटा है. कई बार टूटा है और जुड़ भी नहीं पाता है फिर. पर राइटिंग अच्छी आती है. यानी बहुत टुकड़े तो इसलिए दिल तोड़वाना है तभी राइटिंग अच्छी आएगी. इसलिए हाँ, दिल तोड़वाइए. दिल टूटता है तभी आदमी अच्छा काम करता है. दिल सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आदमी काम ही ना करे, है ना. जी. चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. बड़ा वंडरफुल सेट ऑफ क्वेश्चंस. आनंद जी शुक्रिया. जागरण का बहुत बहुत शुक्रिया. Dehradun, so nice to be here. Thank you. What a beautiful city. सत्र का शीर्षक था लिखते लिखते प्यार हो जाए, लेकिन चेतन जी को सुनते हुए लगा कि सुनते सुनते प्यार हो जाए. क्या बात है सर. एक बार जोरदार तालियां इतनी अच्छी बातचीत के लिए. मैं विनोद श्रीवास्तव से निवेदन करूँगा वो मंच पर आएँ और हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर आभार करें. बहुत बहुत शुक्रिया.